Okay, so good morning, everyone. And today is our next day for our lesson on MS Excel. Last time we studied that how we can create worksheet, what is a worksheet, what is a workbook, and how we can do basic data entry into the Microsoft Excel. And you may be remembering that Microsoft Excel as well as uh, uh, any spreadsheet, be it a different software or cloud-based software like Google Sheets, they all work in a similar way. We just need to know that how we need to process our data. And I'm very happy today to have one of my very good friend, Dr. Ashish Mishra. Dr. Namaskar. Ashish, namaste, Dr. Ashish. Friends, say good morning to him. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, Good sir. morning. Good morning, sir. Good morning, one Good and all. morning, sir. Sir, good morning. So, Dr. Ashish teaches in Allahabad, there in Allahabad University, and he is a wonderful person and a wonderful expert on information and communication technologies. And I thought of introducing him to you so that, and I requested him to take one class on how to process formula, create charts, and very interesting features of Microsoft Excel. So without waiting for more time now, um, आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर आशीष टू बिगिन विद। और आप लोग सभी पॉइंट्स नोट करते रहना। वैसे रिकॉर्डिंग आपको बाद में आप देख भी सकते हो, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी वक्त पूछना हो तो आप उस वक्त बाद तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी वक्त अपने आप को अनम्यूट करके या इसमें चैट में टाइप करके आप अपना क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि आज हम फार्मूले वगैरह और चार्ट वगैरह किस तरीके से करना है उनको हम करेंगे। ओके, सो डॉक्टर आशीष, यू कैन स्टार्ट, यू कैन शेयर द स्क्रीन। Okay, sir. Thank you very much. Now I'm going to share my screen first. And I will be sharing my entire screen. Good morning, sir. Very good morning. कैसे हो हरीश? Sir, is my screen visible? Yes, it is coming up. Yeah, now we can see it. Okay, sir. Dear participants, today we are going to discuss how we can use Microsoft Excel for different types of calculation by the use of Excel function as well as formula. Basically, this lecture will be interactive in nature. I will be giving you the scope to ask questions in between the session. Okay, so let us move further. This is my brief introduction. Sir has already told you, and you all know that Excel is a very powerful software. And here, first of all, we have to understand what is formula and what is function. These two concepts are basically used while dealing with Excel. So first, we should know while dealing with the Excel, any calculation can be specified using either a formula or a function. यानी कि हम formula या function किसी का भी प्रयोग करते हुए हम Excel में calculation perform कर सकते हैं. Where formula are self-defined instructions for performing the calculations. It is an expression that calculates values in a cell or in a range of cells. फॉर्मूले ऐसी चीजें हैं, ऐसे जो है सेल्फ डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हमें इंस्ट्रक्शन देना होता है एक्सेल शीट पर, और उसके कमांड के बाद उस एक्सेल की पर्टिकुलर सेल के लिए या जितनी भी सेल्स हमने सेलेक्ट की है फॉर्मूला के लिए, सारे के रिजल्ट्स हमको एक पर्टिकुलर सेल में आ जाते हैं. Simple example we can have.
if you like to sum up cell B1 up to cell B4, अगर हम B1 से लेके B2 B3 B4 सेल को जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हम फंक्शन भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो पहले फॉर्मूला समझेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू साइन, उसके बाद सम, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में हमें B1 प्लस B2 प्लस B3, एग्जाम्पल है, आपकी सेल कुछ और भी हो सकती है, B4, ऐसे करके सब कुछ लिखना होगा और हमें एंटर करना होगा। तो एक ये जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो एक ब्लैंक सेल पे लगाते हैं, जिससे कि हमें वहां पर वो रिजल्ट मिल सके। ध्यान देना होगा कि किसी ओवरलैप पर ना करें, कहीं ओवरलैप ना कर दें, किसी हम रॉ डेटा पे क्लिक करके वहां पे फॉर्मूला डायरेक्ट ना लगा दें कि रिजल्ट वहीं आ जाए। इससे क्या होगा कि फिर हमें उसको अंडू करके एक ब्लैंक सेल ढूंढनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें एक ब्लैंक सेल सेलेक्ट करनी होती है, उसमें फॉर्मूला भरते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। अच्छा, नेक्स्ट। आशीष जी एक सेकंड। यस एक सर। तो ये स्क्रीन के ऊपर जो छोटा सा वाइट है ना, इसको हाइड कर दो आप। सर ठीक है। यस, हाइट। अच्छा, दूसरी चीज फ्रेंड्स, आप ये देखो, डॉक्टर आशीष ने जो अपना पीपीटी बनाया है, आप लोगों का पीपीटी पे सेशन हो चुका है और आप बना भी चुके हो, लेकिन आप ये देखो कि डॉक्टर आशीष ने किस तरीके से एक अच्छी पीपीटी, उसके अंदर एनिमेशन कैसे डाल रखा है। तो साथ के साथ एक्सेल के साथ साथ आप पीपीटी को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है वो भी आज आप सीख पाओगे दोबारा से। ओके ओके डॉक्टर आशीष, प्लीज गो अहेड। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये ऐसे हम लोग जो है सेल पर एक फॉर्मूला डालते हैं, और फॉर्मूला से एक ब्लैंक सेल पर जब जहां फॉर्मूला हम पुट करते हैं, सेल की रेंज सेलेक्ट करके, तो वहां पर हमें उसकी वैल्यू रिटर्न होती है। और केयरफुली फॉर्मूला डालना होता है, कहीं भी कुछ ओमिशन होता है तो एरर का सिंबल शो होगा और आपको उसे ठीक करना हो। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, फंक्शंस, अभी हमने जो पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा एक्सेल में कि फॉर्मूला क्या होता है एक्सेल का, अब फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज दैट ऑलरेडी कम विद एक्सेल। फंक्शंस में भी फॉर्मूले ही होते हैं, बट दे आर प्री डिफाइंड, वो पहले से परिभाषित हैं, उनको पहले से वहीं पर सेट कर दिया गया है और उन्हें एक नाम दे दिया गया है फंक्शंस का। बहुत कॉमन फंक्शंस भी अभी हम लोग देखेंगे इसमें, दैट ऑलरेडी कम विद एक्सेल, एंड ये एक्सेल के साथ ही रहते हैं उस सॉफ्टवेयर में। इन्हें हमें अलग से फॉर्मूला भरना नहीं पड़ता इनके लिए। और कुछ चीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और फंक्शन से भी कर सकते हैं, वो कॉमन भी होती है। And perform specific calculations in a particular order based on the specified values called arguments or parameters। यानी कि ये जो फंक्शंस होते हैं इनमें प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं पहले से ही सॉफ्टवेयर में, और वो कुछ विशिष्ट जो आपकी गणना करने की प्रक्रिया होती है उसे एक ऑर्डर में करते हैं, क्रम में करते हैं, जिन्हें हम आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स बोल देते हैं। उन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए वो कैलकुलेशंस करते हैं फंक्शंस के अंदर, और तब जाकर एक होल में हम फंक्शंस कह सकते हैं। फंक्शन एक शॉर्टकट होता है जो कि तेजी से कैलकुलेशंस कर सकता है, लेकिन उससे पहले हमें फॉर्मूला का यूज करना एक्सेल में जान लेना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे हम लोग एक्सेल में यूज करें। फंक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। वी टेक एन एग्जांपल। In place of specifying each value to be summed up as earlier, like in the above mentioned formula in the previous slide, we can use the function sum to add up a range of cells as follows. Means we will move to address bar in Excel. We put a sign of is equal or equals to, then we write sum, that is function command code. In bracket we will write b1 colon b4. In the last slide, when we were using the formula, then we were adding up b1 plus b2 plus b3 like this. But now if we are using functions, then we can simply put an equal sign, write sum, and in bracket we write the range of cell that we have to sum up, like this. I think this is clear to you all. Next, what basic formulas we are going to use for today's lecture, and these are the basic formulas mostly used in Excel. That is why I am taking all these. Addition, we can add. Multiplication, we can subtract, we can divide,
and we can count only. Count function is only meant to count the cells having numerical or some values. Count A leaves the blank cell and do not record the counting of blank cell. Count blank counts the blank cells present in a range of selected cell. We can find out average, which is very easy to find it out, and mostly if we sum up a range of cell, then naturally we will find the sum as well as average at the bottom of your desktop or computer while using Excel software. Then we can also find out the minimum as well as maximum value in a range of selected cells. We can find out the length of a particular cell, means a cell having number of letters or digits denoted by length. And now the trim function, this is very useful function because it eliminates unnecessary spaces in between two characters. Like if you are writing any student's name and name is Suresh space Singh, and you have put more than one spaces, and then you will apply the trim function. Trim will reduce the space to a single space only. If is a logical formula that is used while dealing with Excel. if का प्रयोग हम तब करते हैं जो कंडीशंस देते हैं. अभी इसको हम करके भी दिखाएंगे आपको कि कैसे हम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, हमें वैल्यूज रिटर्न होती है. जैसे कि अभी हम जो आज फॉर्मूला लेंगे और उसके बाद चाहेंगे कि आप लोग भी कुछ रॉ डेटा सर जो है उसमें आपको गाइड भी कर देंगे रॉ डेटा पे कैसे आप इफ का फंक्शन यूज करते हैं, और बाकी भी जो आज हम लोग बताएंगे उसकी प्रैक्टिस करिएगा. तो पास और फेल निकालना आज हम लोग सीखेंगे इफ लगा के. नेक्स्ट, concatenate. Concatenate is a digital merging of two cells. अगर हमने मर्ज फंक्शन आपने इससे पहले अगर सुना हो तो फिजिकल यानी भौतिक रूप से दो सेल्स को हम मर्ज कर सकते हैं, और कॉन्केटिनेट के माध्यम से उन दो भौतिक सेलों को हम रख सकते हैं. फिजिकल सेल्स हमारी हो सकती हैं, शीट्स पर दिख सकती हैं रिफ्लेक्ट, और साथ साथ एक नई शीट हम क्रिएट कर सकते हैं जो कॉन्केटिनेट, नई शीट नहीं बल्कि नई सेल बोलेंगे, क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि हम डिजिटल मर्जिंग दिखा सके एक सिंगल सेल में किन्हीं दो वैल्यूज की, दो सेल्स की, यानी वो दो भी प्रेजेंट रहेंगे और ये भी दिखता रहेगा. उसके बाद टुडे एंड नाउ. टुडे फंक्शन returns the present date. We will see this by dealing with practical aspect of Excel today. And now returns date with time. Basic function between the basic difference between today and now is that today returns only date, but now returns date as well as current timing. And now it is also a logical one. We will use t-test and we will use correlation today. And now things that you have to be very careful while dealing with Excel, things to be kept in mind while dealing with Excel. A formula always, mind it, formula always start with equal sign. इक्वल साइन अगर आप भूल जाएंगे एड्रेस बार में लगाना तो फिर आपका फॉर्मूला एरर शो करेगा और रिटर्न वैल्यू नहीं कर पाएगा. वैल्यूज इन वर्ड्स मस्ट बी रिटन इन इन्वर्टेड कॉमा. अगर आप फॉर्मूला बार में कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं जैसे कंडीशन में पास फेल, तो इट मस्ट बी इन इन्वर्टेड कॉमा. सेल फॉर्मेट मस्ट बी सेट इन जनरल. ऑटोमेटिकली जो आपका सेल फॉर्मेट होता है वो जनरल में ही सेट होता है, इसलिए अगर वो जनरल में सेट है तभी फॉर्मूला काम करेगा. अगर कुछ आप स्पेसिफिक वहां से सेटिंग चेंज कर लिए हैं वो आपको सर से पता चल जाएगा, फॉर्मेटिंग सेल की जब करेंगे सर बताएंगे तो वहां से उसको जनरल में करना रहता है. और वैसे भी यूजुअली जनरल में ही सेटिंग फॉर्मेट की सेल की फॉर्मेट की जो सेटिंग होती है वो यूजुअली जनरल ही होती है.
उसके एक बाद मिनट आशीष जी, जी सर। फ्रेंड्स आपको याद होगा पिछली बार जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि करेंसी कैसे सेट करनी है, जैसे रुपी को डॉलर में शो करना है, या डेसिमल प्लेस हमने किया था कि 1 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक कैसे, वो जो चीज़ें हैं वो ये सेल्फ फॉर्मेटिंग होती है। ओके, हाँ डॉक्टर आशीष प्लीज ओके प्रोसीड। सर। जी सर। ओके। स्पेस मस्ट बी सिंगल। आपका स्पेस सिंगल होना चाहिए। फॉर्मूला वगैरह भरते समय अगर अननेसेसरी स्पेस डाल रहे हैं और जहां स्पेस जरूरत नहीं वहां डाल रहे हैं तो फॉर्मूला सही वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करेगा। एंड डू नॉट इनक्लोज नंबर्स इन डबल कोट्स एज वी डू विद वर्ड्स। अगर हम शब्दों को, जैसे कि हमने पॉइंट 2 में स्लाइड के पढ़ा कि इन्वर्टेड कॉमा में वर्ड्स को लिखते हैं, लेकिन जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स को कभी आपको कोट्स में नहीं भरना है, नहीं तो फॉर्मूला एरर शो करेगा। इसका ये मतलब होता है, आपको याद होगा मैंने जब आपको बताया था कि हम डाटा एंट्री जब करते हैं तो हम या तो अल्फ़ाबेट्स या न्यूमेरिकल्स, इन 2 चीज़ों में डील करते हैं। तो कंप्यूटर को जब आप कोई भी वर्ड टाइप करोगे, जैसे मान लीजिए आप सूरज टाइप करते हो, तो कंप्यूटर उसको अल्फ़ाबेट मान के चलता है। जब आप 4 टाइप करोगे तो कंप्यूटर उसको डिजिट मानेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे जितने भी डिजिट हैं वो प्रोसेसिंग में आएँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक शीट बनाई जिसके अंदर पहले कॉलम में मैंने नेम लिखा, दूसरे कॉलम के अंदर मोबाइल फ़ोन लिखा। अब मोबाइल फ़ोन आपका 98 वगैरह जो भी है उससे शुरू होता है। तो लेकिन मोबाइल नंबर हम उसको प्रोसेस नहीं करा रहे हैं। हम मोबाइल नंबर्स को लिख के उसका कभी टोटल नहीं करते। तो वो एक हमारा एक वर्ड के तौर पे हम लेते हैं। तो ऐसे केस में यदि आप उसके फ्रंट में 9 लिखने से उसके लेफ्ट में सिंगल कोट नहीं लगाओगे तो उसको वो नंबर मान के और उसकी प्रोसेसिंग के लिए तैयार रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है कि जब आप किसी भी वैल्यू को अपने सेल्स में लिखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्रोसेस होगा या नहीं होगा। प्रोसेस होना है तो उसको एज न्यूमरल रखो, नहीं प्रोसेस होना है जैसे मोबाइल नंबर है या आपका रोल नंबर है, ऐसी चीज़ें, किसी का हाउस नंबर है, वो चीज़ें प्रोसेसिंग के लिए नहीं होती, वो उनको एज सच रीड करना होता है। तो वहाँ पर हम उसको एज ए अल्फ़ाबेट ट्रीट करवाते हैं। ओके डॉक्टर आशीष। जी सर। These are some more things that you have to keep in mind while dealing with Excel. And don't format numbers in Excel formulas. जब आप Excel फॉर्मूला किसी सेल में लगा चुके हो तो फिर नंबर्स को फॉर्मेट मत करो, फिर एरर शो होगा और बाकी आपको दूसरे फंक्शंस करने में उस सेल के लिए जिस पे फॉर्मूला लगा हुआ है वहां पर आपको वो प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद मैच ऑल ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस इन योर फॉर्मूलाज। आप इस चीज का ध्यान दो कि आपने जो ब्रैकेट वगैरह लगाया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट हम लोग यूजुअली यूज करते हैं इसमें, तो जो भी लगाया हुआ है ऐसा तो नहीं एक जगह ब्रैकेट ओपन किया, इज इक्वल टू लिखा आपने, ठीक है अच्छी बात है, आपने ब्रैकेट शुरू किया अच्छी बात है, आपने जो है ब्रैकेट से पहले इज इक्वल टू और ब्रैकेट के बीच में सम लिखना आप भूल गए, अभी आपको रिजल्ट मिलने में दिक्कत करेगा। उसके बाद आपने इज इक्वल टू लिखा, फिर सम लिखा, उसके बाद ब्रैकेट शुरू किया, अपनी सेल की रेंज या तो 1 by 1 लिख दी और या तो रेंज सेलेक्ट कर दी, दोनों मैं बताऊंगा, और उसके बाद ब्रैकेट आपने छोड़ दिया, तब भी वो एरर शो कर सकता है या शो करेगा। तो इसे हमें ध्यान देना है कि जो हम फॉर्मूला एड्रेस बार पे पुट कर रहे हैं तो जो वैल्यूज हम चाहते हैं रिटर्न में, तो क्या उन्हीं सेल के लिए पुट कर रहे हैं जो हम अपने फॉर्मूला बार में डालें, या हम कुछ फॉर्मूला बार में कुछ और डाल रहे हैं और हम चाहते कुछ और है। तो हमें बहुत ध्यान से ये चीज हम लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग एड्रेस फॉर्मूला बार में क्या डाल रहे हैं, वही हमें डालना होगा जिस पर हम प्रोसेसिंग करके रिजल्ट चाहते हैं। उसके बाद मेक श्योर कैलकुलेशन ऑप्शंस आर सेट टू ऑटोमेटिक। आपका जो कैलकुलेशन ऑप्शन होता है वो ऑटोमेटिक पर सेट होना चाहिए, जिससे कि जो भी आपका कमांड हो आप ड्रैग करें, कहीं कुछ ले जाएं। जैसे मान लीजिए आपने एक सेल पे एक वैल्यू रिटर्न कर ली और आप उसको सिंपली भी बताऊंगा मैं कि कैसे ट्रैक करते हैं, तो सारे एडजेसेंट सेल्स पे वो काम कर जाता है उस पर्टिकुलर कॉलम पे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो वो ऑटोमेटिक सेटिंग होनी चाहिए। एक मिनट और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन का ऑप्शन एक बार स्टूडेंट्स को जी एक मिनट आप फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। हम कई बार टर्म्स को
पूरा ध्यान नहीं देते हैं उनके ऊपर। एप्रोप्रिएट, जैसे ये यहाँ पर सेकंड बुलेट के अंदर लिखा हुआ पैरेंथेसिस, ये एग्जैक्ट वर्ड है ये। और क्योंकि आप लोग अकाउंट्स और फाइनेंस के हो, आगे आप लोगों को इसमें काफ़ी काम करना है इसी फील्ड के अंदर, तो आप ये ध्यान रखो कि हम नॉर्मली ब्रैकेट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। मैथमेटिकली कंप्यूटेशनली जो राइट टर्म है वो पैरेंथेसिस है। तो आप भी आगे कभी मान लीजिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल को यदि आप कोई इंटरव्यू दोगे और कहीं आप जाओगे तो ब्रैकेट वर्ड नहीं बोलना आपने, अब वहाँ पर पैरेंथेसिस बोलोगे, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है, दिस इज द एप्रोप्रिएट वर्ड। ओके आशीष, चलो। ओके सर। फिर आपको कैलकुलेशन ऑप्शन को ये श्योर कर देना है कि जो आपका कैलकुलेशन ऑप्शन एक्सेल सीट में है सेटिंग्स में, वो आपका ऑटोमेटिक पर सेट हो, तभी कमांड्स ऑटोमेटिकली लेगा, वरना जो प्री डिसाइडेड कमांड आपने दिया होगा उसमें और इसमें मिसमैच होगा और एरर शो होगी। नेक्स्ट, some basic tricks that we need to know how to deal with Excel effectively. Copy the same formula to other cells instead of retyping it because it just saves time. आपको 40 बच्चों के रिजल्ट्स मिल गए हैं 4 विषयों के, उसके बाद आपको उनका टोटल मिल गया क्योंकि आपने एडिशन सीख लिया और आपने उनका परसेंटेज निकाल लिया जो मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद फिर आपको उनका रिजल्ट निकालना है 40 बच्चों का, पास है कि फेल है। रिजल्ट का कॉलम आपने बना लिया और आपने रिजल्ट के कॉलम में एक सेल पर फॉर्मूला भर दिया और आपने रिजल्ट पा लिया। उसमें लॉजिकल फॉर्मूला हम लोग भरेंगे और वो भी देखेंगे भी। आपको रिजल्ट मिल गया। अब क्या आप ऐसे 40 बार करोगे? आप ऐसे 40 बार करोगे तो बहुत समय खराब होगा। सीखना है, प्रैक्टिस करना है तो कर लो, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि 8-10 को खुद फॉर्मूला मैनुअली टाइप करके देख लो। उसके बाद क्या करो, सेम फॉर्मूला उसको पकड़ो, ड्रैग करो जहां तक जिस रेंज तक आपको चाहिए। रेंज सिलेक्शन में बहुत अलर्ट रहना होगा, उसको ध्यान देना होगा, वहां तक सिलेक्ट करो, आपको सारा रिजल्ट वो बिना 1 by 1 किए आपको ऑटोमेटिकली दे देगा। इट सेव्स टाइम ऑल्सो। डिलीट फॉर्मूला बट कीप कैलकुलेटेड वैल्यू। अगर आपको कहीं कोई कॉपी या ऐसी चीज है, मान लीजिए आपको परसेंटेज आ गया यहाँ पे, और परसेंटेज क्यों आया था? क्योंकि आपने फॉर्मूला का यूज किया था सेल के लिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप उसको कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट करोगे तो फॉर्मूला के साथ जाएगा। और आपको चाहिए क्या था? आपको डेटा चाहिए, फॉर्मूला नहीं चाहिए। कहीं और कॉपी करना है किसी सेल में या कहीं और भेजना है उसको कॉपी करके, तो आप क्या करो, उसको फॉर्मूला को डिलीट करो और कैलकुलेटेड वैल्यू रखो। कैसे करोगे? राइट क्लिक करने पर वो ऑप्शन पूछता है जब पेस्ट करते हो तो कहीं पर, कि आपको फॉर्मूला चाहिए या खाली वैल्यू चाहिए। तो कीप वैल्यू ओनली कर दो तो आपको खाली वैल्यू मिलेगी, फिर वहां फॉर्मूला लगा नहीं मिलेगा, फिर आप उससे फर्दर फॉर्मूला लगा सकते हो अगली शीट पर। उसके बाद ऑटो सम एंड एवरेज बहुत कॉमन है, सब जानते हो, आप भी जानते होगे। ऑटो सम एंड एवरेज मैं इसको नीचे दिखा भी दूंगा। तो ये कुछ बेसिक ट्रिक्स थी। अभी आज के लिए थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जितना आपका बन गया है, अब हम लोग प्रैक्टिकल्स पर बढ़ते हैं। इसके लिए मैं अपनी एक एक्सेल शीट खोलता हूं। सर, इज माय एक्सेल शीट विजिबल टू यू सर? हाँ, ठीक है। ओके सर। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव दिस रॉ डेटा। पूरा रॉ नहीं है क्योंकि मैंने इसमें कुछ प्रोसेसिंग भी कर दी है। आप इसको रॉ ही मान के चलेंगे, हम आपके सामने प्रोसेसिंग करेंगे। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए। सर मैं ये कह रहा था, ये एक्सेल में सर हम क्या क्या कर सकते हैं? ये एक तो रिजल्ट जैसी चीजें हो गई सर, मार्क्स को मतलब इसमें इनपुट कर सकते हैं। इसके अदरवाइज सर और भी इसके यूज तो होंगे ना? हाँ, इसके बहुत से यूज है। इसके थ्रू हम आपको ग्राफ चार्ट भी बना सकते हैं। इसके थ्रू हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको 2 आज करके दिखाऊंगा, एक टी टेस्ट और एक कोरिलेशन। और भी बहुत सी चीजें इस पे हम कर सकते हैं जो हमारे रिसर्च के लिए फ्रूटफुल रह सकती है। ठीक है? ओके सर, ओके। सूरज, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जहां कहीं आपके पास कुछ डेटा है, उसकी प्रोसेसिंग कोई भी किसी भी तरीके से प्रोसेसिंग हो सके, वो सारी एमएस एक्सेल से हो सकती है। नॉर्मल सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हमारे जो 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, कौन से होते हैं?
फंडामेंटल ऑपरेशंस मैथमेटिक्स के 4 कौन से होते हैं बताओ? सर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। तो ये हमारी बेसिक ऑपरेशंस हैं, लेकिन इसके साथ साथ फिर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस भी होते हैं जहां पर हम इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से आगे की जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनको कैसे प्रोसेस करना है। तो जहां कहीं आपने डाटा कलेक्ट सर किया, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है सर। ओके, जहां कहीं आपने कोई भी डाटा कलेक्ट किया और उसको जब आप प्रोसेस करोगे, चाहे उनको जोड़ना है, घटाना है, भाग देना है, गुना करना है, या फिर परसेंटेज निकालनी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको एडजस्ट करना है, वो सारी की सारे काम एम एस एक्सेल में हो सकते हैं। नॉट ओनली एम एस एक्सेल, कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो सभी इन चीज़ों को करेगा। कुछ पर्पस के लिए, जैसे रिसर्च होता है, रिसर्च के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, उसके लिए स्पेशल स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर भी होते हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि आपका जो आपने डाटा एंट्री की है, मान लीजिए एम एस एक्सेल में आपने डाटा एंट्री कर ली, लेकिन उसके लिए आपको अलग से फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो ये फायदा आपको यहाँ पर क्या है कि इसमें जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनके अलावा आपको बनाने पड़ेंगे, फॉर्मूला आपको लिखने पड़ेंगे। तो जो स्टैटिस्टिकल पैकेज होते हैं उनके अंदर वो फॉर्मूले इनबिल्ट हैं, सब तरह के जितने भी आप सोच सकते हो। तो वहाँ पर ये एम एस एक्सेल और स्प्रेडशीट, गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट आपको ये काम देता है कि आप अपनी डाटा एंट्री इधर करो, यहाँ से डाटा लेके उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दो, तो आपका वो टाइम बचाता है और आपको वो एक प्लेटफॉर्म देता है कि किस तरीके से आप उसको फिर आगे प्रोसेस करोगे। तो कैलकुलेशन के नाम पर आप जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये स्प्रेडशीट उन सभी चीज़ों को हेल्प करता है। ओके, क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो आशीष। ओके सर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल्स, इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उससे हम लोग डील करते हैं और ये जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको जानना है कि आपने कहा ऑटो सम, ऑटो एवरेज। तो देखिए, इसको आपको जैसे मान लीजिए कि ये साइंस का नंबर है, ये कुछ रॉ डेटा है, यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ये बच्चों के नाम है, इमेजिनरी, कोई रियल डेटा नहीं है, ये मैंने क्रिएट किया है। फिर ये मैथ्स के मार्क्स हैं, फिर उनके हिंदी के हैं, फिर इंग्लिश के हैं और साइंस के हैं। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड ये वाला है कॉलम। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और बच्चों जान लीजिए कि ये जो यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो बार होता है इसी को हम फार्मूला बार कहते हैं। और यहीं पर हमें सारे फॉर्मूलाज पुट करने होंगे वन बाय वन, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद अगर आप यहाँ बगल में देखेंगे, ये एफ एक्स लिखा हुआ है, ये आपके फंक्शन है। ये देखिए, ये फंक्शन जो रिसेंट यूज किए होते हैं, ये सारे फंक्शन यहाँ पे आपको दे देते हैं। और बाकी आप अंदर जाकर डिटेल फंक्शन की लिस्ट भी पा सकते हैं। ये देखिए, जैसे काउंट, एवरेज, सम, ये सब दिखा रहा है, ये फंक्शंस हैं। तो अभी मैंने कहा था ना, फार्मूला और फंक्शन। फार्मूला के लिए ये बार बना हुआ है, यहाँ फार्मूला हम मैनुअली डालते हैं, और फंक्शन में ऑलरेडी फॉर्मूले भरे हुए होते हैं और उनका नाम दे दिया गया है। जैसे यहाँ जो सम फॉर्मूला या ये जो सम फंक्शन दिया हुआ है, इसमें सम का फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हम चाहे यहाँ से फंक्शन से सम कर लें, रेंजेस को सिलेक्ट करके सेल्स की, और या तो फिर हम वन बाय वन यहाँ ये फॉर्मूला बार पे वैल्यूज भर के और कमांड देके भी हम ले सकते हैं। शुरू में आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप फंक्शन के बजाय फॉर्मूला बार का यूज करते हुए कैलकुलेशंस करें। सर यहाँ तो फंक्शंस और फॉर्मूला में अक्सर क्या डिफरेंस आएगा सर दोनों में? सर देखिए, फंक्शंस तो किसी की रिस्पेक्ट में देखा जाता है ना। फंक्शन एक्चुअली क्या है कि ये शॉर्टकट है, जो कि प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, ये बस सिंपली, और इसका नाम दिया गया है। जैसे सम आप मैनुअली भी करोगे, तो सेल 1, सेल 2, सेल 3 जोड़ रहे हो मैनुअली एड्रेस बार में, ये यहाँ पे। और ये जो फंक्शन का आपको टैब मिला हुआ है, ये अलग से, जो जिस पर मैंने अभी कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कम समय में सम का कमांड देके रेंज को सिलेक्ट कर लोगे, तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला इसमें भी अंदर है, इनहेरेंट है फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ है। और कौन कौन से हैं, जैसे ये सब है, टी टेस्ट निकाल लें, कोरिलेशन निकाल लें, सब ऑलरेडी फॉर्मूले इसमें भरे ही। बस ये बेसिक डिफरेंस है कि फंक्शन कंटेन्स फॉर्मूला इन इटसेल्फ। ओके। ओके सर। और इसमें हमें हमें पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा। हम यहाँ पर क्लैरिफाई भी करते हैं कि जो आप ये 1 2 3 4 5 6 ये लेफ्ट साइड से यानी टॉप से बॉटम देख रहे हो, जिसे हम जो वर्टिकल प्रोग्रेस है उसे हम कहते हैं कॉलम्स।
तो जब मैं कॉलम्स बोलूं तो समझिएगा कॉलम क्या है। और ये जो आप इधर से देख रहे हो, सीरियल नंबर, नेम, मैथमेटिक्स, रो। हिंदी, इंग्लिश, परसेंटेज, ये जो है आपकी रोज है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो आपको ये शुरू के 10 बच्चे, रोहन से लेके दर्शन तक जो बच्चे हैं मैथमेटिक्स के, इनके हमें सम जानने हैं कि मैथमेटिक्स में इन 10 बच्चों ने टोटल कितना अचीव किया। और इससे बेटर हम अगर ये समझे कि अगर रोहन ने मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस में कितना टोटल किया और उसका एवरेज क्या रहा है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है साइड में, और हमको यहाँ से करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ ये एवरेज दिया हुआ है 72, और काउंट यानी 4, 4 सेल्स हैं जो वैल्यूज होल्ड कर रही है, उन्हें हमने सेलेक्ट किया है तो काउंट ऑफ सेल्स दिखा रहा है, जिसे नंबर ऑफ केसेस भी कह सकते हैं। और यहाँ सम दिया है 288, बॉटम पे देखिए जहां मेरा कर्सर है, ये 288। तो जैसे ही आप किसी सेल की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, आप कोई फॉर्मूला बनते हैं, कोई क्या कहते हैं फंक्शन आप सेलेक्ट करें, जैसे ही सेल्स की रेंज को आप डिजिट्स सेलेक्ट करेंगे, जो वैल्यूज डिजिट्स में मानता है, नंबर्स में मानता है, तो आपको वहां पे नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड बता देगा कि 4 सेल्स आपने सेलेक्ट की हैं, 4 रेंज में आपके 4 सेल्स हैं। आपका एवरेज 72 आ रहा है, यानी कि जो सिंपल एवरेज होता है और जिसको हम सिंपल मीन भी कहते हैं। और ये आपका सम आ रहा है 288। तो यही, बट ऑब्वियस है कि यही 288 है, ये यहाँ भी शो हो रहा है, क्योंकि उसी का मार्क्स यहाँ पे शो हुआ है। तो ऐसे आप कर सकते हो, यही चीज आप जो है कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। अभी तो हमने रोज रोज को सिलेक्ट किया और उनका टोटल एवरेज नीचे देखा, ऑटोमेटिकली यहाँ रिजल्ट बॉटम पे दे रहा है। और बाकी चीज इसी तरह हम कॉलम के लिए भी एवरेज और आपका टोटल जान सकते हैं। अब अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर एक हम ब्लैंक सेल सेलेक्ट करते हैं और इसमें हमें सम करना है, तो हम यहाँ एड्रेस बार पर जाएंगे, इज इक्वल टू साइन लगाना नहीं भूलेंगे, और हम अपना कमांड लिखेंगे SUM। कमांड गलत नहीं होनी चाहिए, विदाउट स्पेस हम ब्रैकेट, मैं तो ब्रैकेट क्या करता हूँ पहले ही बना लेता हूँ, और उसके बाद फिर एक स्टेप बैक जाके बीच में आ जाता हूँ। और उसके बाद दो ऑप्शन, आप यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या सम करना चाहते हैं। तो चलिए, हमने जो भी उदाहरण किया हम उसी का सम दिखा देते हैं। रोहन के चारों विषयों में कितने स्कोर्स हैं हम उसी को देख लेते हैं। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे करके 1 बाय 1 सेलेक्ट करके कॉमा लगाते जा सकते हैं। हम यहाँ पर सम D4 लिखा है और कोलन लगा दें, उसके बाद फिर हम यहाँ आपका यहाँ तक की रेंज ले लें, सम D4 से G4, यानी कि ये देखिए आप, ये G4 है, ये F4 है, सब इंक्लूडेड हो गया क्योंकि कोलन लगा है, तो कोलन टेल्स अबाउट द रेंज। या फिर हम उसको मैनुअली भी कॉमा लगाकर सेलेक्ट करते जाते, तभी वहां पर ब्लू कलर से सेल देता। अगर ब्लू कलर से सेल दे रहा है तो इसका मतलब सिलेक्शन सेल का आपका सही है, फॉर्मूला में अभी तक की कोई एरर नहीं। अब हम सीधा एक एंटर प्रेस कर देंगे तो हमें यहाँ पे ये देखिए रिजल्ट आ गया 288, वही है, टोटल 288 है, यहाँ भी वही आ रहा है, आपने करके भी देख लिया। अब आप जो है चाहे तो यहाँ पर डी D3 E3 ऐसे प्लस करते जाएं और तब एंटर करेंगे तभी 288 ही आएगा। तो आप अभ्यास करिए, धीरे धीरे फिर आपको आ जाएगा। इसी सर तरह, ये यस, एक्सक्यूज मी सर, सर ये आपने ये फॉर्मूला सर आपने खुद क्रिएट किया है या ऐसा कुछ है सर, मतलब ये D4 ये कॉलन G4 ये वाला सर? ये कमांड हमने दिया है, ये जो रेंज अभी हमने सिलेक्शन किया ना, ये हमने मैनुअली इसको दिया। ये और अच्छा अगर हम, क्वेश्चन है, इट इज अ गुड हाँ, क्वेश्चन। सर बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन। सर मतलब ये मुझे एक चीज क्लियर नहीं हो रहा कि ये जी, D4 और G4 मतलब ये क्या है, मतलब सर ये मतलब आप ये रो कॉलम की बात कर रहे हैं, और सर सम तो हाँ, आपने कमांड बाहर दिया है ना, तो बीच में कॉलम क्यों लगाया सर? मुझे क्लियर कर दीजिए सर, डाउट है मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिए, जो कोई सॉफ्टवेयर होता है उससे कुछ कमांड होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। इज इक्वल टू कॉमन है सारे फॉर्मूला लगाते समय मैनुअली, ठीक है। राइट उसके सर, राइट। बाद SUM इसका कमांड कोड है, आप कोई और कमांड SEM लिख देंगे तो नहीं लेगा, SUM ही लेगा, ठीक है। उसके बाद आप ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जो भी सम करना है उसकी एक रेंज आपको ब्रैकेट में देनी होगी। तो आपने पहले उठाया, ये D लिखा है ना, ये D, और उसके बाद यहाँ आपके ये 4 है, तो D4 ये वैल्यू है मैथमेटिक्स की, रोहन की नंबर, जो मैथमेटिक्स में रोहन का नंबर है उसकी वैल्यू है D4, ठीक है।
आप यस बीच में फीडबैक दीजिए जिससे मुझे लगे कि आपको मतलब मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक यस है। सर, यस सर, यस सर, यस, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद रोहन का हिंदी में नंबर है, उसकी सेल वैल्यू क्या है, E4, ठीक है। और इसी तरह बढ़ते बढ़ते रोहन का साइंस में जो स्कोर है उसकी वैल्यू क्या है, G4, ठीक। तो उसके ओके ओके सर, चारों मतलब यानी विषयों कि के आप वहां नंबर, से डी से लेके जी तक की बात कर रहे हैं, ओवरऑल ऐड करने वाली। हाँ, रेंज हाँ, को, यस यस। इसमें आप ये, देखो, हाँ मैंने सर आपको बताएं। बताया था कि किसी भी शीट के अंदर दो चीजें हैं, कुछ कॉलम हैं कुछ रोज हैं, ठीक है। जब आप उसको एज ए ग्रुप देखते हो तो या तो आप रो में हो या एक कॉलम के अंदर हो। जहां पर रो और कॉलम मिलते हैं वो पॉइंट सेल बन जाता है। इस वक्त बहुत सही। रोहन के मैथमेटिक्स का जो 80 लिखा हुआ है वो जिस पॉइंट के ऊपर डी कॉलम और चौथी रो मिल गई तो वो एक सेल बन गया। तो ये जितनी भी चीजें हैं इंडिविजुअली अंदर आपको जितने भी खाने दिख रहे हैं टेबल के अंदर, ये सारे सेल हैं। हर सेल की अपनी एक पोजीशन है, वो दर्शाता है। और ये आप देख सकते हो। आशीष, जरा ये जो ग्रुप बना हुआ है इसको हटाओ, जरा एक बार अंदर कहीं और क्लिक करो। जी हाँ, अब आप देखो ऊपर जो रिबन है हमारा, आप जानते हो ना रिबन क्या होता है। रिबन के नीचे जो सर फार्मूला टैब्स बार और ग्रुप है, से बनता है रिबन सर। यस, जो फार्मूला बार है उसके बिल्कुल लेफ्ट में M17 आपको अब नजर आ रहा होगा। M17 का मतलब इस वक्त कर्सर जो हमारा सेल सेलेक्टेड है वो M कॉलम और 17वीं रो के ऊपर है। और यदि आप शीट पे देखो तो M कॉलम के ऊपर पिंक कलर आ गया और 17वीं रो के ऊपर पिंक कलर आ गया। आशीष, किसी दूसरे सेल में क्लिक करो यस सर। कहीं पे भी। अब देखो वो चेंज हो गया O और 19, और उसी तरीके से उधर हमारा वो चेंज हो गया O19 उधर क्लिप बोर्ड वाले वर्ड के एग्जैक्ट नीचे बी कॉलम के ऊपर आपको दिख रहा होगा। वो दर्शाता है सेल पोजीशन। ये सेल पोजीशन एक सेल की हो सकती है या मल्टीपल सेल्स की हो सकती है एज ए ग्रुप। कोई भी डाटा हमारा जिस भी सेल में होगा हमें वो सेल सेलेक्ट करना होता है। सिंगल सेल है तो नॉर्मल चलेगा, ग्रुप है तो हमें उसको पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट के अंदर रखना होता है। इसको आप याद रखो, बचपन में आप लोगों ने जब हिसाब पढ़ा था, मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बॉडमास, वो हिंदी में बदमाश यस बोलते सर, हैं यस जिसको। सर। वो जो बदमाश वाला फार्मूला है वो वहीं पर है। बी का मतलब क्या होता है उस फार्मूले के अंदर? ब्रैकेट ऑफ सर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड यस सब्ट्रैक्शन। यस, बिल्कुल। वो वेरी जो नाइस। ब्रैकेट है वो हम इसीलिए उसको डालते हैं कि ताकि और चीज़ों के साथ उसका कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो यदि हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है हमें। तो ये जब हम रोहन के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे 80, 79, 50 और 79 को लेकर, तो हम इसको एज एक ग्रुप बनाएंगे कि चार चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना है, तो वो हमें ब्रैकेट में डालनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? यस सर, अब डाउट क्लियर है सर, थैंक यू सर। ओके। तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि सम का फॉर्मूला कैसे लगता है, उसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा, सर ने उसको और अच्छी तरह से समझाया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सम का तो आप समझ ही गए होंगे। अब दूसरे फंक्शंस भी इसी तरह हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हमें सब्ट्रैक्ट करके देखना है तो हम यहाँ से कर लेंगे। आप एक ब्लैंक सेल, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ब्लैंक सेल होना चाहिए। आशीष, एक मिनट। हाँ करण, बोलो, आपका कोई क्वेश्चन है? अभी करण का हैंड रेज हुआ था या वैसे ही वो क्लिक हो गया? ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, मैं आगे बढ़ू ना सर? जी, यस प्लीज। ओके सर। इसी तरह आप कुछ किसी चीज को घटाना चाहते हैं, यानी कि किसी एक संख्या में से दूसरी संख्या को आप घटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सिंपली उसके लिए कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टोटल में से ही किसी को आपको घटाना होता है। मल्टीपल कमांड्स में इसमें कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे मान ले से फॉर एग्जाम्पल आपको जो उसका हिंदी, ये आपका हिंदी का जो मार्क ये वाला है रोहन का, उसमें आपको इंग्लिश के मार्क्स को घटा देना है। तो ये सेल वैल्यू लेना है और माइनस ये सेल वैल्यू लिख देना है। तो उसके पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू, और
आप अपनी सेल, जैसे ये आपका ये हिंदी का है तो रोहन का सेल हो जाएगा ये DE4, रोहन का सेल है तो E4 लिख देंगे, E4। उसमें से माइनस करना है क्या, देखिए जैसे ही हमने यहाँ लिखा तो ये हाईलाइटेड हो गया ब्लू से, आप सब लोग देखिएगा ध्यान से। जैसे ही इस वैल्यू को हमने यहाँ लिखा E4, यानी इस सेल की बात की, इसकी पोजीशन शो करने लगा, ब्लू हाईलाइट होने लगा सेल का बॉर्डर, और उसमें से हमें माइनस कर देना है इंग्लिश का स्कोर, रोहन का ही। तो वहां है F4, हमने लिखा F4। अब हमको एंड कर देना है। ये देखिए ये आ गया 29, सब्ट्रैक्शन हो गया। ऐसे आप भी अपने सेल्स में रॉ डेटा के साथ करके देखिएगा। तो ये आ गया आपका 29। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट अब हम लोग सीधा परसेंटेज निकालते हैं, तो उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों सीख लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट लेते हैं कुछ इस जगह, यहाँ पर मान लीजिए हम फिर से, हमने पहले से निकाला हुआ है लेकिन आपको समझाने के लिए हम फिर से लिखते हैं कि मान लीजिए परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो इसका मतलब है कि इस सेल पर हमें वो वैल्यू चाहिए। तो इस सेल की वैल्यू है L, इस सेल की पोजीशन है L4, इस पर हमें परसेंटेज चाहिए रोहन का। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू लिखेंगे। परसेंटेज निकलता कैसे है अपने दिमाग में देखिए, जिसे आप मैनुअली करते हैं जरा वैसे सोचिए, तो वैसे ही यहाँ पे लिखा जाएगा। ये बोलना नहीं है, अपने एब्स्ट्रैक्शन में सोचिए, देखिए कि मैं वैसे कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। देखिए, मार्क्स टोटल ऑब्टेन्ड बाय रोहन, जो उसके चारों विषयों को मिला के जो टोटल है इसका एग्जाम में, वो है 208। तो 208 सेल की वैल्यू क्या है, वो ये है H4। H4 कितने में से है ये H4, यानी मैक्सिमम मार्क्स में से ही होगा 208। मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू क्या है, ये पहले हम डिवाइडेड बाई का सिंबल करेंगे, और ये 400, यानी कि L, ये I4, ये हमारा टोटल स्कोर है, उसमें से 208 नंबर रोहन को मिले, यानी 208/400। उसके बाद यहाँ पर आप यूजुअली कीबोर्ड में पाएंगे एक स्टार का चिन्ह होता है, वही अब मल्टीप्लिकेशन का भी काम करता है, चाहे कैलकुलेटर यूज करें चाहे एक्सेल। तो शिफ्ट के साथ आप उसको दबा देंगे तो यहाँ पर वो सिंबल आ गया मल्टीप्लिकेशन। इससे मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज निकालने के लिए 100। हमें क्या करना है, 100, ठीक है। ये हो गया। अब इसे हम एंटर कर देंगे, तो ये देखिए 52 आ गया ना, पहले से ही मैंने करके रखा था, और ये देखिए 52 यहाँ पर आ गया है। इसी तरह 66.5 भी निकल आएगा, सबका इसी तरह निकल आएगा, लेकिन हमें सर मैनुअली अगर सब में देखिए, फिर हाँ बताएं। सर सब में फॉर्मूला पुट करेंगे क्या, या मतलब एक बार ये जैसे आपने फंक्शन एक की बार साइड में कहा था वहां पर? एक बार करेंगे और मैं दिखाता हूँ कि सब में कैसे आ जाएगा। बस मैं वही, बहुत अच्छे आप लोग क्यूरियस हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इससे लर्निंग जो है बहुत फ्रूटफुल होती है। देखिए पहला एक बच्चे के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया, और जैसे ही क्लिक करेंगे किसी सेल में जहाँ फॉर्मूला लगा होगा, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में वो फॉर्मूला दिखाने लगेगा कि उसमें फॉर्मूला लगा हुआ। जैसे यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, तो वैल्यू दिखा रहा है, रोहन लिखा है। यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। ये देखिए ये यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, तो फॉर्मूले की वैल्यू जैसे यहाँ पे लगा है फॉर्मूला, सेम यहाँ पे। तो आपने कहा कि क्या सबके लिए करेंगे, नहीं कोई जरूरत नहीं है, वरना एक्सेल की जरूरत क्या थी, फिर हमको कैलकुलेटर से नहीं निकलना होता। इसलिए समय बचाना है, एक्सेल का यूज करना है। तो सिंपली देखिए, हमें सेल को पहले लेफ्ट क्लिक करके, फिर से मैं दिखा रहा हूँ जिसमें आप समझ जाए, जहां हमने परसेंटेज का फॉर्मूला पुट किया, एक का परसेंटेज हमें प्राप्त हुआ, हमने लेफ्ट क्लिक की, लेफ्ट क्लिक करते ही ऐसे सिलेक्शन हो गया। और यहाँ ये बॉटम पे जब जब कर्सर लाएं और प्लस बनने लगे, तो होल्ड करें माउस, और आप उसको ड्रैग करते चले जाएं। कितने बच्चों का चाहिए, हमारे पूरे 40 बच्चों का चाहिए, दलवीर तक का। ये देखिए एक क्लिक पे परसेंटेज आ गया, है ना, आ गया ये सभी का। अब Sir, I ये, have one doubt. यस यस, Sir, how is this possible that you have clicked and the whole row की परसेंट बता दी उसने? ओके ओके, आपने यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, और एक वैल्यू आपको रिटर्न हुई, 52% उसका आया। उसके बाद क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉलम में ये फॉर्मूला हमें पूरा लगाना है, और अभी खाली एक सेल में लगा हुआ है,
तो हमने क्या किया, सिंपली उसको लेफ्ट क्लिक किया और यहां से ड्रैग किया। तो जब ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करने का कमांड प्लस के साथ जब सिंबल आता है और ड्रैग करते हैं, बीच में माउस छोड़ना नहीं है, तो वो जो हमारी एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है वो ये मानता है कि जो काम उस पर्टिकुलर सेल में किया गया है वही काम हम जितनी सेल को ड्रैग कर रहे हैं वहां तक के लिए किया जाए। तो वो कॉपी हो जाता है फॉर्मूला। जैसे ही कॉपी हो जाता है तो वो जो है रिजल्ट्स को शो करने लगता है। ठीक है, इसे आप करके देखना तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझाना चाहूंगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, कि रिजल्ट्स कैसे आए, पास फेल कैसे पता चला। तो हम यहाँ रिजल्ट्स बना लेते हैं, जगह यहाँ पे थोड़ी खाली रहेगी तो यही बना लेते हैं, एक बनाते हैं, सब दिख जाएगा उसी में। इसके अलाइनमेंट पे ही लेते हैं। अब हमें रिजल्ट देखना है, ये लॉजिकल फॉर्मूला का एग्जाम्पल रहेगा। रिजल्ट हमें यहाँ आएगा, ये आर हटा देते हैं। अब रिजल्ट हमें जानना है कि कितने लोग पास हैं कितने फेल हैं। तो मान लीजिए कि हमने कमांड बनाई कि जिसका 60%, वैसे तो यूजुअली 33% हर जगह माना जाता है, लेकिन मान लेते हैं हम अपना एक क्राइटेरिया, एक अपना वो कमांड देना चाहते हैं कि इससे नीचे के बच्चे फेल, इससे या इससे ऊपर के बच्चे पास। तो हम अगर मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले वही है, फॉर्मूला बार पे इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, फिर हम अपना ब्रैकेट बंद करेंगे। और ब्रैकेट बंद करते समय अगर ब्रैकेट बोल्ड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका स्पेस वगैरह प्रॉपर। अब हम ब्रैकेट के अंदर लिखना शुरू करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इफ, कंडीशन दे रहे हैं। और यहां पर एक चीज ध्यान देना होगा कि इफ को बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे। उसको मैं फिर से सही कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान देंगे। ब्रैकेट में बाहर ही कमांड होगा, अंदर नहीं। जो भी आपको अंदर ब्रैकेट के अंदर चाहिए कमांड, तो यहाँ बाहर एक कमांड होगा इफ, ये लॉजिकल कमांड है। उसके बाद हम उस ब्रैकेट को बना देंगे, ब्रैकेट के अंदर अब कमांड देना शुरू करेंगे, यानी इफ का मतलब क्या है यहाँ पर उस सेल के लिए, वो हम लिखना शुरू करेंगे। उसको समझिएगा जरा ध्यान से एक एक करके। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि परसेंटेज यदि उसका 50 से ऊपर है तो पास, या 50 है तो पास, और अगर 50 से जरा सा भी नीचे है तो फेल। तो अब चाहे हम इसके कॉलम को मान लें या जो हम लोग ने अभी नया कैलकुलेट किया, दोनों ये एकदम वो है, डुप्लीकेट कॉलम्स है, क्योंकि आपको करने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये मैंने पहले से किया हुआ था। सेम है, किसी एक का हम लोग चयन कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग अपने बनाए हुए कॉलम का, यानी एल, एल वाले कॉलम के जो परसेंटेज हैं उन पे हम ये उनको इंक्लूड करते हुए रिजल्ट्स निकालते हैं। बात सेम है, चाहे के पे लगाएं चाहे एल पे लगाएं, क्योंकि मेरे केस में दोनों कॉमन है, दोनों आइडेंटिकल। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे क्या। तो हमारा ये जो एल है कॉलम, एल में परसेंटेज क्या है 52, और 52 हमारा परसेंटेज है, इसी के बेसिस पे पास या फेल बताना है। तो हम एल का कॉलम पकड़ लेते हैं, उसमें इस सेल पर पहले काम करते हैं, फिर बाकी कॉपी कर देंगे जैसे अभी परसेंटेज को किया था। तो ये हो गया हमारा L4। तो हम लिखेंगे L4, L4 इज लेस देन 50। यानी कि जो हमारा ये है L4 जो सेलेक्ट हो गया, हाईलाइटेड हो गया ब्लू से, अगर वो 50 से कम है, यहाँ तो 52 है, ज्यादा है, तो देखिएगा अभी ये रिजल्ट पास का आएगा। और देखिएगा ये जो 41 वाला है ये 50 से कम है तो फेल का दिखाएगा, देखिएगा अभी। अब ये 52 है, तो अब हम 50 के बाद लिखा हमने अपने एड्रेस बार में इफ, फिर ब्रैकेट बनाया, L4 जो वैल्यू दी है सिलेक्टेड ब्लू से हाईलाइटेड, लेस देन का सिंबल है ना, जिधर पतला है, जिधर पिन है वो लेस देन का है, और जिधर ज्यादा बॉर्डर खुला हुआ है वो ग्रेटर देन का है। याद करने का इस सिंबल को तरीका होता है, इससे डाउट नहीं होगा आपको कभी। ग्रेटर देन, इफ L4 इज लेस देन 50, देन अब क्या होगा, तो हम एक कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे डबल इन्वर्टेड। डबल इन्वर्टेड क्या लिखेंगे, लेस देन है तो क्या होगा भैया, फेल होगा, वो फेल हो जाएगा। फिर कॉमा, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, फिर डबल इन्वर्टेड लगाएंगे, उसमें लिखेंगे पास। कमांड को नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली। इसी तरह आप और भी कमांड अपनी बना सकते हैं। L4 इज लेस देन 50 तो फेल, नहीं तो पास।
चलिए अब एंटर करते हैं, तो पास हो गया। मैंने कहा था ना 50 से ज्यादा है तो पास हो जाएगा। और यहाँ इसको फिर हमने लेफ्ट क्लिक किया तो ये हाईलाइटेड हो गई सेल, और यहाँ बॉटम पे जैसे ही हम कर्सर लाएंगे प्लस जैसा सिंबल बनेगा, आप उसको नीचे ड्रैग करते चले जाइए जहां तक। अब कुछ वैल्यूज यहाँ पे हैं तो इसलिए मैं यहीं तक कर रहा हूँ, वरना वो मैं कुछ बताना चाहता रहूंगा इसलिए मैंने उन वैल्यूज को लिखा होगा। तो मैं यहीं तक परसेंटेज लेता हूँ, क्या कहते हैं, शैलजा तक के आसपास का, दलवीर तक कभी नहीं जाता हूँ। ये देखिए रिजल्ट आ गया सामने आपके। ये देखिए जो 41 वाला मैंने बोला था ना, ये फेल शो हो रहा है। कहीं भी आप देख लीजिए, फेल कौन है? जो 50 या 50 से कम है, और जो 50 से कम है। 50 या 50 से ऊपर वाले जो है वो पास है, कहीं भी आप देख लीजिएगा। 50 से नीचे वालों को फेल शो करेगा। तो इस तरह आपने ये सब चीजें सीखी। अब हम लोग कुछ यहाँ तक की कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, और सर का कोई ऑब्जर्वेशन है सर यहाँ तक का तो फिर सर मैं मैंने दे तो दूं। सर जब मैंने सी प्लस प्लस की एक प्रोग्रामिंग की थी ना, सो जी मैंने इस टाइप से कुछ उसमें प्रोग्राम पढ़ा था सर। मतलब इफ कंडीशन देते, इफ उसमें भी सर सेम ऐसे ही था जैसे अच्छा ऐड अच्छा। एंड सब्ट्रैक्ट वाले में सर। सो मुझे हाँ वही हाँ लग रहा है ये भी। ये जो इफ एंड देन, ये जो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी बेसिक, ये उन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इफ एंड देन का कंडीशनल लूप होता है। जहाँ कहीं हमारे पास एक डिसीजन लेना हो तो हम इफ एंड देन को यूज़ करते हैं। तो आप जो सी वाली लैंग बात कर रहे हो वो सही है। बेसिक फिलोसफी यही है सब में। जहाँ पर डिसीजन आ जाए कि ये हो तो क्या होगा, वहाँ पर हम इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। ओके। ओके सर। सर इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है ना मोस्टली, तो एमएस एक्सेल तो यही है सर, मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए और लॉजिक लगना चाहिए। हाँ, लॉजिक तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जब प्रोग्रामिंग सीखते हो तो एल्गोरिदम जो बनाई जाती है वो लॉजिक ही है। मान लीजिए चाय बनानी है तो चाय के लिए आप क्या एल्गोरिदम लिखोगे? जैसे आप स्टार्ट करो कि सबसे पहले गो टू किचन, देन टेक पॉट, पुट वाटर इनटू इट, टेक्स sugar, take tea leaves, mix them into the pot, switch on the gas, put the pot on the gas, वेट फॉर बॉइलिंग। ये सारे वो लॉजिक उस तरीके से वो चल रहे। तो एल्गोरिदम्स जो होती है वो वहाँ पर ही। तो लॉजिक डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जिसका जो जितने अच्छे तरीके से लॉजिक को डेवलप कर लेंगे उसको उतना इजी रहेगा ये चीज़ें। यस ओके, सर। तो चलो तो आगे आई देखो। आइए कुछ और चीजें देखते हैं इसमें। अब हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो काउंट और काउंट ब्लैंक का फंक्शन है वो कैसे यूज करते हैं इसमें। तो जैसे मान लीजिए ये कुछ रैंडम और हमारे पास आशीष एक वैल्यूज। सेकंड, और आप लोगों को ये भी याद होगा मैंने आपको बताया था अभी, आप स्क्रीन पे सबसे नीचे वाली तो काली पट्टी है, उसके ऊपर जो एक्सेल की पट्टी है जिसमें रेडी लेफ्ट में है, और राइट के अंदर जो हमारा मैग्नीफिकेशन बार है, इसके बीच का जो स्पेस है, यहाँ पर ये एमएस एक्सेल हमें ऑटोमेटिकली कुछ 3 चीज़ें बेसिक फंक्शन करके देता है। आशीष जरा आप टेबल के अंदर एक जी सर। रो, वैसे ही एक कॉलम के अंदर कुछ फिगर्स को सिलेक्ट करना। जी सर। ऐसे ही कुछ चीज़ों को आप सेलेक्ट करो और छोड़ दो। यस सर। देखो अब नीचे वो उसका एवरेज, काउंट और सम ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर दिया। ये यहाँ पे। जी। हेलो। तो ये कई बार आपको कुछ चीज़ें जो इनबिल्ट हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके लिए फार्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं। मान लो आपको वेरी क्विकली, लेकिन ये स्टोर नहीं होगा। जैसे ही आप इस सिलेक्शन को हटा दोगे तो वो आ जाए। अब बाहर क्लिक करो ये कहीं पर भी, देखिए ये वो हटा निकल दिया। गया। तो वो जी क्या है कि क्विक डिस्प्ले है आपके लिए। पर यदि आप ये चाहते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो शीट के अंदर सेफ रहे, आपने उसको सेव करना है ताकि फ्यूचर में यूज कर सकें, तो फिर आप फार्मूला या फंक्शन को यूज करोगे। बट वैसे ही आपने एक शीट बनाई, टोटल किया, देखा, इमीडिएटली करना है तो उसको आप सेलेक्ट करो, वो आपको फिगर वहां पे दिखा देगा। ये एमएस वर्ड के अंदर भी ये फीचर है। एमएस वर्ड के अंदर वर्ड काउंट दिखाएगा आपको वो।
आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो तो नीचे वहां पर उसके अंदर उस पर्टिकुलर सिलेक्शन में कितने वर्ड आ गए वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे रहा है आपको। ठीक है, चलो आशीष। जी। अब हम लोग चलिए काउंटिंग देखते हैं कि काउंटिंग कमांड कैसे, इससे बहुत अभी छोटे डेटा होते हैं तो हम लोग मान लीजिए ये तो दिया, हम लोग ने इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और पा गए। मान लीजिए 100-200 का डेटा होता तब कैसे काउंट करते कि इसमें कोई ब्लैंक सेल तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि अगर हम कोई सेल गलती से ब्लैंक रह गई है और उसे किसी फर्दर प्रोसेसिंग में हम ले जाते हैं तो हमारे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स में एरर शो कर सकता है। इसलिए हमें अगर ये देखना हो कि हमें इसमें कोई ब्लैंक सेल्स तो नहीं है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर भी एक वैल्यू लिख दी 12, उसके बाद यहाँ पे भी एक वैल्यू लिख दी 14। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से, और यहाँ तक देखा। तो वैसे अगर हम नीचे देखेंगे तो वो कहेगा एवरेज 7 पाइड इतना और काउंट 11। ये तो सेल आपको बता ही रहा है, सम भी बता दे रहा है। अगर आप उसको दूसरी तरह से भी देखना चाहें कि इसमें ब्लैंक कितना है, तो वो हम कैसे पता करें? तो हम ऐसा करते हैं, पहले एक ब्लैंक सेल हम खुद भी चुनते हैं, यहाँ उसके राइट साइड में, यहाँ फार्मूला बार पे जाते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं और इसमें हम लिखते हैं काउंट ब्लैंक। ये इसका कमांड कोड है, काउंट ब्लैंक। कहां से कहां तक का काउंट ब्लैंक? अब उसमें कह रहा है कि रेंज सेलेक्ट करिए, तो हमें रेंज चाहिए यहां से लेके और पूरी यहां तक की, ये रेंज चाहिए। इसमें हमें देखना है ब्लैंक कितना, कितने सेल्स इसमें ब्लैंक है। नहीं, हम और रेंज लेते हैं, नीचे भी हमने लिख दिया है, वो मैं कमेंट कर रहा था। यहां तक हमें लेना है। इसमें देखना है कितने ब्लैंक सेल्स हमारे हैं जो खाली हैं, जिसमें कोई वैल्यू नहीं। 3 आए, देखिए। एक ये ब्लैंक सेल है आपका इस रेंज में, यानी यहां से सेलेक्ट किया हम और यहां तक हम गए 14 तक। एक ब्लैंक ये है, एक ब्लैंक ये है और एक ब्लैंक ये 3 आपको ब्लैंक सेल हैं। अब आपको ये बता रहा है कि इतने ब्लैंक सेल्स आपने सेलेक्ट कर लिए। अब हम आपको दो और इंपॉर्टेंट फंक्शन बताकर सर से परमिशन लेना चाहेंगे। किसी और क्लास में अगर सर मौका मिलेगा तो मैं जरूर और भी चीजें कुछ बताना चाहूंगा। ये 2 चीजें मैं और बताना चाह रहा हूँ सर, अगर परमिशन है तो सर। हाँ श्योर, प्लीज गो अहेड। ओके सर। इसमें देखिए, अब हम लोग ये फंक्शन देखते हैं ना कि इसमें ट्रिम का फंक्शन क्या होता है। ट्रिम फंक्शन होता है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक नाम लिखा हुआ है माधव सिंह। अब आप देख रहे हैं इसमें अननेसेसरी स्पेसेस हैं बीच में, लेकिन यहाँ जो माधव सिंह लिखा है उसमें स्पेस बहुत सही है, केवल एक स्पेस है जो रिक्वायर्ड है। तो कैसे करना है? मान लीजिए ढेर सारे ऐसे नाम, एक में तो आपने मान लीजिए यहाँ मैनुअली कर लिया, लेकिन ढेर सारे नाम हैं, आपको कैसे करना है? तो आप एक ब्लैंक सेल पहले यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें कोई फॉर्मूला पहले से ना पुट हुआ हो। उसके बाद आप यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे, फिर आप उसको ट्रिम लिखेंगे, जो फंक्शन का कोड है, कमांड कोड। किसे ट्रिम करना है उसको आपको बताना होगा। तो आपको ट्रिम करना है, यहाँ पर आपको उस चीज को बताना होगा कि किस सेल को आपको ट्रिम करना है। तो वो सेल आपकी है पी, ये वाली सेल है, आपको इसे करना है P31। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अननेसेसरी स्पेस बीच में से हटा दिया उसने। ऐसा हम अपने डेटा में भी बहुत आराम से कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी ऑर्डर ऑर्डर के लिए तो सॉर्ट एंड फिल्टर से, यहाँ से ये देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर आता है। किसी रेंज को आपने सेलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए जैसे हमने सेलेक्ट किया यहाँ तक, और यहाँ से हमने जो है सॉर्ट एंड फिल्टर किया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे तो छोटे से बड़े क्रम में ये अरेंज हो जाएगा, और लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करेंगे तो सबसे ऊपर 14 आ जाएगा, फिर उसके बाद छोटे वैल्यूज आती जाएंगी। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा इसमें हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी ले सकते हैं। वो हम एक ब्लैंक सेल यहाँ पहले सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू लिखेंगे और लिखेंगे मैक्सिमम। इसके लिए मैक्स लिखना सफिशियंट रहता है इसके हिसाब से, और मैक्सिमम की पूरी वो रेंज मांग रहा है तो हम यहाँ से यहाँ तक की रेंज ले लेते हैं। इसमें मैक्सिमम कौन है वो भी बता देगा, 14, 14 इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह यहीं पर हम मिनिमम की भी वैल्यू ले सकते हैं। बस यहाँ पे हमको कमांड में मिन लिखना है तो वो हमें रिटर्न कर देगा। ये देखिए
आपको 1 मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो यह तो मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन हो गया। लेंथ है तो किसी कैरेक्टर में कितनी लेंथ है वो बता देगा। जैसे मान लीजिए आपका ये माधव सिंह लिखा हुआ है, यहाँ पर हम उसके ये जानना चाहते हैं कि इस कैरेक्टर में कितने लेटर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम इज इक्वल टू करेंगे और उसमें हम लिखेंगे LEN। लेन इतना लिखा जाता है, उससे ज्यादा लिखने की नहीं जरूरत होगी। उसके बाद क्या किसकी लेंथ चाहिए, हमें चाहिए इसकी लेंथ। तो यहाँ पर हम जाएंगे, एंटर कर देंगे, तो ये देखिए 13 कैरेक्टर्स हैं। माधव सिंह में 13 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। आप अपने इसको मैनुअली भी जोड़कर देख लेंगे तो वही आएगा। और एक लास्ट चीज मैं बताकर सम अप करना चाहूंगा, कंक्लूड करना चाहूंगा। उसके लिए हम लोग एक फिर से ब्लैंक सेल यहाँ सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि हम कोई लिस्टिंग चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है और हम ये माधव सिंह को कॉपी कर लेते हैं यहीं पर, यहाँ पर फिर से 1 के पास पेस्ट वैल्यू 1, ठीक है। माधव सिंह को रखा हमने, माधव सिंह, और यहाँ इस O कॉलम में 1 लिखा हुआ है और P कॉलम में लिखा है माधव सिंह। मान लीजिए सीरियल नंबर का कॉलम है, ये नेम का कॉलम है। अब इन दोनों कॉलम को हम यहाँ रखना भी चाहते हैं और साथ ही साथ साइड में यहाँ पे चाहते हैं कि ये मर्ज भी हो जाए। तो इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं। उसके लिए कॉनकैटिनेट फंक्शन होता है। इस ब्लैंक सेल को हमने इसके बगल में चुना यहाँ पर, और हमने यहाँ लिखा इज इक्वल टू और लिखा कमांड। उसके बाद हमने बनाया पैरेंथेसिस। उसके बाद किसे कॉन्कैटिनेट करना है, इसको, कॉमा इसको। उसके बाद एंटर किया तो ये देखिए 1 माधव सिंह, ये 2 सेल की वैल्यू एक सेल में आ गई। तो अगर कहीं रेलेवेंट है, कहीं हमें ऐसा करना है, तो हम आराम से ऐसा कर सकते हैं। और अगर इस 1 में हम थोड़ा सा एक वो डॉट लगाए होते तो वो हमको डॉट रिटर्न करता है। यहाँ पर 1 और माधव सिंह के बीच में हमें एक डॉट भी रिटर्न कर देता। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर सम ऑफ द बेसिक फीचर्स रिगार्डिंग हाउ टू यूज एक्सेल। सर, this was from my side. Now, is there any observation थैंक यू from your आशीष जी। side? You are most welcome, sir. फ्रेंड्स, आपको ये जो बाद की जो कमांड्स बताई हैं, आपको इनकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी। कि जैसे मिनिमम मैक्सिमम, मान लो आप बजटिंग अकाउंट्स के अंदर आपको बजटिंग से बहुत डील करना पड़ेगा। और बजटिंग के अंदर आप ये देखना चाहते हो कि मिनिमम खर्चा किधर हुआ, मैक्सिमम खर्चा किधर हुआ, वो चीज़ें निकालना। तो आप, और जब ये शीट बहुत लंबी होती है, आप ये देखो कि नेशनल लेवल के ऊपर, इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर जब बजट बनता है तो बहुत शीट्स और डाटा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मैनुअली आप करोगे तो कई कई साल लग जाएंगे उसको प्रोसेस करने में। तो वहाँ पर ये जो हमारे फंक्शंस हैं, फार्मूलाज हैं, ये हमें बड़ी हेल्प करते हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहली बार में थोड़ा सा आपको स्ट्रेसफुल लग सकता है, लेकिन बहुत इजी हैं चीज़ें, सिंपली। और दूसरी चीज़, फार्मूले के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। एक्सेल रिकॉग्नाइज करता है पहले 4 कैरेक्टर को। यदि आपने कॉनकैटी पूरा लिखना है, लेंथ पूरा लिखना है तो भी चलेगा, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं होता और ज़रूरत भी नहीं है। सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि मैं तो बना ही इसलिए हूँ कि आपका टाइम बचा सकूँ, और सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में भी आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो फिर सॉफ्टवेयर का फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए सॉफ्टवेयर आपको ये कहता है कि यदि आप LEN लिख दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा, और LENGTH लिख दोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास फालतू टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप लंबा लिखना चाहते हो तो ठीक है। मैंने तो डाटा प्रोसेस करना है, वो सॉफ्टवेयर आपको बोल रहा है वो। तो इसलिए ये वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ध्यान रखने लायक, जो आपको ये बेसिक फार्मूले कराए हैं आज हमने आपको। नेक्स्ट क्लास में चार्ट कैसे बनाना है और दूसरी चीज़ें हम लेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करो, और अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। Sir, please send the recording in the WhatsApp group. हाँ, वो तो